So 29th November this year is going to be your CAT exam. 7 months almost left, but take it as 6 months of effective preparation time because the last month is just for revision and practicing. Now the big question is, can you crack CAT in 6 months of preparation? The answer is a big yes. For an exam like CAT, 6 months is more than enough preparation. But yes, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको 1 year preparation में जो अब आप नहीं कर पाओगे. For example, foundational prep आप नहीं कर पाओगे. You don't have time for exploration at this stage. At the same time, you don't have time to make mistakes at this stage. And अगर आप एक weak and below average student रहे हो and अभी से CAT preparation शुरू कर रहे हो, then probably you have to give 3-4 hours every day over the weekdays and 7 to 8 hours over the weekends, including the mocks. Yes, if you have been a good student, maths में quant में आपका grasp है, basic grasp है at least, then you can decrease this time. However, अगर आपको 99 percentile चाहिए and आप below average student रहे हो, then you have to spend this kind of a time, 4 hours over the weekdays and 7 to 8 hours over the weekends. So let's start the preparation strategy video. I am Anand Chajar and I am Ahmedabad alumni. Scored a 99.91 CAT percentile. I have been guiding CAT aspirants and I hope this video helps you too. So start करते हैं. जैसे आप जानते हो CAT में 3 sections होते हैं, verbal ability, LRDI and quant section. Verbal and DLR का foundational prep का time आपके पास नहीं है and I will come to that. But quant is probably the only subject जहाँ पर अभी भी आपको foundational prep करना पड़ेगा, especially अगर आपका class 10 तक maths इतना strong नहीं था. And quant section से ही हम अपनी preparation strategy शुरू करते हैं. So for quant you have to prepare in 3 ways. First is the foundational theory prep आपको करना है, उसके बाद you have to practice a lot of questions and after that will come the sectionals and the mocks. And quant के लिए ये एक basic schedule tentative timeline मैं आपको बना के दे सकता हूँ कि आपको कौन सा topic कब तक prepare करना है, but आप अपने schedule के according इसको tweak कर सकते हो. इसमें just mentioned है कि number of questions कितने practice करना है आपको from each of the topic depending on the complexity and the importance of it and कब तक आपको complete करना है that particular topic. आप अपने schedule के according इसको tweak कर लेना, मैं link description में डाल दूंगा, आप यहाँ से download भी कर सकते हो and आप इसको follow भी कर सकते हो as it is. तो इसके बाद मैं आपको important topics बता देता हूँ जो यहाँ पर mention भी है and green में mark कर देता हूँ वो important topics from quant. ठीक है, तो 5 broad areas में divided होता है quant section. First is arithmetic जिसके अंडर आते हैं ये topics. Important जो topics है वो green में marked है, but इसका मतलब ये नहीं है आप बस green वाले topics करोगे. At this point you have a lot of time, इसलिए आपको अभी सारे ही टॉपिक्स कवर करने हैं. अरिथमेटिक में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद अलजेब्रा में भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, उसके अंडर आते हैं ये टॉपिक्स. उसके बाद नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं ये टॉपिक्स. उसके बाद ज्योमेट्री के अंडर आते हैं ये टॉपिक्स एंड फाइनली मॉडर्न मैथ्स के अंडर ये 2 टॉपिक्स. तो याद रखना अभी आपको सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करने का सोचना है, नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दैट इज ओनली फॉर पीपल हु आर इन द लास्ट 2 or 3 months ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैट. ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं फाउंडेशनल प्रेप में. फाउंडेशनल प्रेप के लिए आप क्या करोगे, अगर आपका क्लास 10 तक मैथ्स बहुत वीक था देन आप बेसिक प्रेपरेशन करो, लाइक परसेंटेजेस क्या होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें क्या होती है क्लास 10 के बुक से पढ़ो, नॉट द कैट लेवल 1. उसके बाद बेसिक अलजेब्रा, a+b² का फॉर्मूला एंड एवरीथिंग अगर आपको याद नहीं है वो सब रिवाइज कर लो. बेसिक ज्योमेट्री लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, इनका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स आप एक बार रिवाइज कर लो. अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो देन बस उनकी कोचिंग क्लासेस फॉलो कर सकते हो, दे कवर द बेसिक्स एज वेल. बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू कैन टेक एनी बुक लाइक आर डी शर्मा ले सकते हो या एम एल अग्रवाल क्लास 10 में जो आप फॉलो करते थे उसको ले सकते हो एंड जस्ट क्विकली थ्योरी कवर कर सकते हो. मैक्सिमम 2 वीक्स में आप अपना क्लास 10 जस्ट रिवाइज कर लोगे कि क्या क्या आपने पढ़ा था. दैट इज मोर देन इनफ. उससे ज्यादा आपको अभी नहीं करना है बिकॉज अल्टीमेटली थ्योरी प्रिपरेशन में भी आप फाउंडेशनल प्रेप करोगे ही एनीवे. एंड थ्योरी प्रिपरेशन के लिए भी अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो देन जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस एंड द मटेरियल्स दैट दे हैव गिवन. नो नीड टू बाय एनी बुक. मैक्सिमम 1-2 और टीचर अगर आप बाहर से करना चाहते हो आप वो ले सकते हो. दैट इज मोर देन इनफ. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो देन मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए थे, उनको जाके यूट्यूब पे सर्च करो, राइट कैट प्रिपरेशन एंड गो एंड वॉच द वीडियोज ऑफ डिफरेंट टीचर्स. हुएवर यू लाइक यू कैन गो एंड वॉच, या फिर आप डिफरेंट टीचर्स भी देख सकते हो फॉर डिफरेंट टॉपिक्स एंड वहां से आपका टॉपिक एक बार थ्योरी कवर हो गया, वट एवर फॉर्मूला एंड एवरीथिंग यू हैव लर्न, राइट इट डाउन इन अ पर्टिकुलर नोटबुक. उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. योर प्रिपरेशन शुड लुक लाइक 20% ऑफ थ्योरी एंड 80% ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक, तभी वो टॉपिक कंप्लीट होता है.
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो कोई बुक ले सकते हो, लाइक निश्चित के सिन्हा सर्वेश की वर्मा बुक है वो ले सकते हो, या फिर हम वी हैव अ प्लेटफॉर्म एज वेल MBA सर्कल, आप वहां से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट MBA सर्कल तो एडवांस स्टेजेस में आप जाके प्रैक्टिस करना, वहाँ एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग यू वोंट गेट, सो यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ, एंड अरिथमेटिक का कंप्लीट सेक्शन आपको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। सो अभी आप कोई बुक ले सकते हो या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है जस्ट यूज दैट ओनली, दैट इज द बेस्ट सोर्स एंड दैट इज मोर देन इनफ दैट यू वुड नीड। ठीक है, तो ये आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है। याद रखना थ्योरी में बस आपको थ्योरी पढ़ना नहीं है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एटलीस्ट 20 30 40 क्वेश्चंस एक टॉपिक से सॉल्व होते हैं, उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड आइडियली इन अ ब्रॉड वे आपको और 2 मंथ्स देने हैं अरिथमेटिक के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स कवर करने के लिए, उसके बाद अनदर मंथ इन नंबर सिस्टम, नेक्स्ट मंथ इन अलजेब्रा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ इन ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। इस तरीके से 5 मंथ्स में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। याद रखना अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अरिथमेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अरिथमेटिक में यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट अगर वहां से 10 क्वेश्चन आते हैं यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 7 ऑफ देम, एंड अगर आपने 7 सॉल्व कर लिया अरिथमेटिक से you will definitely get a very good percentile. And the final step of this preparation would be sectionals and mocks, but उसपे बाद में आते हैं once I cover verbal and DLR as well. And verbal and DLR cover करूँ उससे पहले, if you want to start your CAT coaching at this stage and you want to cover it with a coaching in a structured manner, then let me tell you about the partners of this video. iQuanta, जिनके 6+ students already IIM Ahmedabad convert कर चुके हैं, and this is on the day of the results of IIM Ahmedabad. अब ये number और भी increase हो गया होगा. I just have to go back and talk to them about their final converts. IIM Bangalore and IIM Calcutta के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं meanwhile, so I have to take those numbers, and ये नंबर obviously बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा because CAT 2025 में 580 प्लस 99 परसेंटाइलर्स थे iQuanta से, so definitely this will increase a lot. मैंने लास्ट ईयर भी सजेस्ट किया था iQuanta कोचिंग, and this year they have planned something more as well. So इस साल आपके पास 1:1 mentorship option रहेगा from CAT toppers and IIM mentors. At the same time, now all of their classes and practice sessions have moved to their application, so आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन अब वहां पर पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स फ्रीली ऑन द ऐप, 24/7 डाउट सपोर्ट है इनका। एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिस फीचर्स ऑन द ऐप एज वेल दैट यू कैन अवेल इफ यू आर enrolled in their course. And iQuanta's new batch is starting this month, where first of all you will get access to all the basic modules, VRC essentials, LRD essentials, non-ingenious quant module. So once आप ये अपने basic classes, basic modules cover कर लोगे, उसके बाद the regular live classes by their expert faculties will start. अमित पंचमटिया सर है, शबाना मैम है, राज सर, all of those classes will start and everything will be covered from basic to advanced in these classes. And जैसे जैसे syllabus का एक portion complete होता है, you get access to advanced modules, 24/7 doubt support, CAT level mock test with AI analysis, 7,500 plus CAT level questions का भी access मिलता है, and CAT level questions की practice भी आप करते जाओगे. And you can also join their WhatsApp group for free CAT resources and updates if required. I'll add the link in the description and you can check it out from there. And इसके बाद आ जाते हैं वर्बल सेक्शन में। तो वर्बल सेक्शन में मैं पहले बताता था आपको फाउंडेशनल प्रेप करना है, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग यू हैव टू रीड, बट अभी वो रीडिंग का इतना टाइम नहीं है, तो आप आरसीज प्रैक्टिस करते करते ही रीडिंग भी प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी देयर इटसेल्फ। आपको वोकैबुलरी या फिर कोई भी चीज़ अलग से नहीं पढ़नी है एट दिस स्टेज। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद बाकी टॉपिक्स आप क्विकली कवर कर सकते हो, मैक्सिमम 2-3 वीक्स में आप थ्योरी कवर कर सकते हो उन टॉपिक्स के, बट मैक्सिमम फोकस आपको देना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। एंड हाउ टू गो अबाउट इट, एक पर्टिकुलर मेरा वीडियो है 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी आरसी, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो देन प्लीज़ उनका वीडियोस देख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड उसके बाद आप आरसीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर बुक चाहिए आपको, GMAT मैनहट्टन सीरीज करके एक बुक है, मैक्सिमम ये एक बुक खरीद सकते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज आप MBA सर्कल में जाके वहाँ पर भी फ्री आरसीज होते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करो। या तो आप फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस में रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस वहाँ बहुत ईजी है, या फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको प्रॉब्लम चाहिए, बहुत डिफिकल्ट सेट्स चाहिए, तो नेक्स्ट सेक्शन में आप जाके कैट लेवल आरसीज जो है वो जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वो एक्चुअली कैट लेवल के ऊपर ही आरसीज हैं, सो वहाँ से जाके भी आप रीडिंग कर सकते हो, आप वो ऑप्शंस वो आरसीज सॉल्व भी कर सकते हो। सो आप दोनों चीज़ें साथ में प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस एंड रीडिंग भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है। याद रखना कुछ आरसीज आप विदाउट टाइम फैक्टर भी रीड कर सकते हो, सो दैट यू रीड दैट पर्टिकुलर आरसी, आप उसको विदाउट टाइम सॉल्व करो एंड वट एवर वर्ड्स यू एनकाउंटर जो आपको नए लगते हैं उनको नोट डाउन करो, आप
आपका उससे वोकैबुलरी भी इंप्रूव होता रहेगा। सो आपको रीडिंग एज वेल एज प्रैक्टिसिंग आरसी साथ में करना है अब। एंड मे बी द नेक्स्ट 1 or 2 months आप जस्ट आरसीज प्रैक्टिस करते जाओ, नथिंग एल्स। आप 1-2 वीडियो देख लो, दैट इज इट विल टेक यू मैक्सिमम 3-4 डेज, आप थ्योरी कवर कर लो। उसके बाद जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग आरसीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपके कोचिंग मटेरियल से फॉलो करो, एमबीए सर्कल प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, एंड कहीं से भी जहाँ से आरसीज मिलते हैं आपको कैट लेवल, वहाँ से जाके सॉल्व करो। तो यहाँ से आपका 2 मंथ्स में आरसीज कवर हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ आप दे सकते हो वर्बल एबिलिटी टॉपिक्स में, बट एट ड्यूरिंग दिस स्टेज एज वेल याद रखना आपको आरसीज डेली प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 2 आरसीज एवरी डे तो प्रैक्टिस करना ही है। इफ पॉसिबल 4 to 5 आरसीज एवरी डे अगर आप कर सकते हो, इट्स मोर देन इनफ। आप इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हो, 5 days a week डेज में आप 5 days पढ़ रहे हो तो एवरी डे यू हैव टू स्टडी क्वांट, दैट इज फॉर श्योर 2 hours ऑफ क्वांट में दो। उसके बाद 2 hours ईदर वर्बल और DILR, सो मे बी 3 days ऑफ DILR दे सकते हो एंड 2 days ऑफ वर्बल दे सकते हो। नेक्स्ट वीक आप उसको इंटरचेंज कर लो, 3 days ऑफ वर्बल कर लो एंड 2 days ऑफ DILR कर लो। एंड वीकेंड्स में यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, क्वांट, वर्बल, DILR एज वेल एज प्रैक्टिस द सेक्शनल्स एंड मॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना स्टडी शेड्यूल करना है। एंड याद रखना 3 months बाद आपका सब कुछ कवर हो चुका होगा, उसके बाद भी यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। जब भी आप किसी नए सेट में, नए आरसी पैसेज में कोई नया पैटर्न डिकोड करते हो, कीप नोटिंग डाउन इन योर कॉपी एंड कीप रिवाइजिंग दैट पैटर्न्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी भी आपको समझ में आया कि अच्छा ये पर्टिकुलर पैटर्न के लिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है, एंड याद रखना हमेशा आरसीज में या फिर किसी भी वर्बल सेक्शन के क्वेश्चन में यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। इसलिए वो पैटर्न ढूंढो जो एक ऑप्शन को गलत बनाता है एंड कीप राइटिंग डाउन इन अ कॉपी। मान लो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज्ड है इसलिए ये पर्टिकुलर ये ऑप्शन रॉन्ग था, या फिर रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंशन्ड है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग था, उनको नोट डाउन करो एंड कीप रिवाइजिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड नेक्स्ट आरसी आप जब भी सॉल्व करते हो उसमें इंप्लीमेंट करो। ओके, आफ्टर 3 months इट विल जस्ट बी अबाउट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस अ सेक्शनल, मे बी एक ऑल्टरनेटिव डे सेक्शनल्स प्रैक्टिस करो या फिर 4 to 5 आरसीज एवरी डे प्रैक्टिस करो, एंड वीकेंड्स में डेफिनेटली गो फॉर सेक्शनल्स एंड मॉक्स एज वेल। आई थिंक 3 months बाद तो आपको मॉक्स डेफिनेटली शुरू कर देना ही चाहिए। सैटरडे संडे एवरी डे 1 mock एंड एनालिसिस भी साथ में करना है आपको। सो सैटरडे संडे 1 mock ईच, तो 2 mocks ओवर द वीकेंड्स एंड अलॉन्ग विद द एनालिसिस। इसके बाद DLR प्रिपरेशन, एंड DLR में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बट याद रखना आफ्टर द चेंज इन पैटर्न फ्रॉम 2016 ये डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट है कि एक पर्टिकुलर सेट किस टॉपिक से आया है। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड दैट्स व्हाई आपको बहुत डिफरेंट वे में प्रिपरेशन करना है। मैक्सिमम 2 weeks या फिर मैक्सिमम 1 month में आपको सभी थ्योरी कवर कर लेनी है। अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो प्लीज जस्ट उनका वीडियोस देखो, अगर आप नहीं हो तो इन टॉपिक को जाके आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाइक अरुण शर्मा भी फॉलो कर सकते हो। देयर इज, यू डोंट नीड मच मोर देन दैट। एक्चुअली बुक्स फॉलो करना बेटर नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फॉर DLR, इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। रादर आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे एंड मैक्सिमम 1 or 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो इस टॉपिक से, दैट विल बी मोर देन इनफ। कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे आपको ये सेट्स मिल जाएंगे, आपको 1-2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको इंप्रूव करना है बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर DLR सेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद कोचिंग मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन एमबीए सर्कल में काफ़ी सारे DLR सेट्स मेंशन्ड है, 300+ DLR सेट्स है, आप वो जाके भी सॉल्व कर सकते हो। एंड DLR आपको इनिशियल स्टेजेस में क्या करना है, नो मैटर इट टेक्स यू 40 minutes 50 minutes टू सॉल्व वन सेट, आपको वो 40-50 minutes देने हैं टू सॉल्व इट। आप जस्ट सोल्यूशन देके आगे बढ़ जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। 10 मिनट में 15 minutes में इनिशियल स्टेजेस में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, इवन इफ इट टेक्स 40-50 minutes, जान लगा दो उस पर एंड थिंक। आपको अपना थिंकिंग इवॉल्व करना है, स्पेशली अगर आप पजल्स एंड सुडोकू पहले करके नहीं आए हो, देन यू हैव टू इवॉल्व योर थिंकिंग, एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप फोकस करो ऑन सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पैटर्न डिकोड करो कि एक पर्टिकुलर सेट का पैटर्न क्या है, उसको किस पैटर्न से मैं डिकोड कर रहा हूँ, किस टाइप का टेबल बना रहा हूँ। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए जहाँ मैं एक पर्टिकुलर DLR सेट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से मैं पहले पैटर्न डिकोड करता हूँ, उसके बाद टेबल सेट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद हिंट्स डिकोड करता हूँ, एंड उसके बाद आई फिगर आउट कि उसके बाद मैं डेटा एंट्री करना शुरू करता हूँ। इससे क्या होता है, इफ आई नॉट डिकोडिंग द पैटर्न्स देन हो सकता है मैं वो सेट तो सॉल्व कर लूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं एग्जैक्टली सिमिलर या फिर समवॉट सिमिलर सेट सॉल्व करूंगा ऑफ सिमिलर पैटर्न, देन शायद मुझे उतना ही टाइम वापस लग जाए, बिकॉज एग्जैक्ट सेम सेट तो नहीं मिलने वाला है कैट एग्जाम में, बट पैटर्न और अ पोर्शन ऑफ द पैटर्न इज गोइंग टू बी रिपीटेड। तो जब तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको किस पैटर्न से डिकोड किया जा रहा है, उसको किस पैटर्न से सॉल्व किया जा रहा है, तब तक मैं नेक्स्ट सेट में इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बस सेट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, उसके बाद आप
कितने सारे हिंट्स हैं एंड किस टाइप का टेबल स्ट्रक्चर बनाता हूँ अगर उस पैटर्न का सेट आता है. ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू डिकोड, आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे. अदरवाइज आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव वेरी फास्ट. इंप्रूवमेंट तो आएगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे डीएलआर सेट्स, इंप्रूवमेंट तो आएगा, बट शायद वो इतना फास्ट ना हो अगर आप बहुत कॉन्शियसली पैटर्न डिकोड करके आगे बढ़ते हो. एंड मैं एक वीडियो बना दूंगा डीएलआर पे, आप वो बाद में जाके देख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि आप प्रैक्टिस करते जाओ. इनिशियल डेज में अगर आप 2 आवर्स दे रहे हो डीएलआर प्रिपरेशन में ऑन अ डे, तो अगर आप 2 सेट भी सॉल्व हो रहा है, जस्ट सॉल्व दोस 2 सेट्स, दिस इज मोर देन इनफ. उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूव करो, गो टू 4 सेट्स, गो टू 6 सेट्स ग्रेजुअली. बट 2 सेट्स अगर आपका सॉल्व हो रहा है इन 2 आवर्स, दैट इज मोर देन इनफ, बट सॉल्व इट ऑन योर ओन, इवॉल्व योर थिंकिंग पैटर्न फर्स्ट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू कवर. एंड फाइनली कुछ टिप्स मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए. रिमेंबर, कैट इज एन एग्जाम ऑफ प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. इट्स नॉट अबाउट थ्योरी. सो जब भी आप थ्योरी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो या फिर बहुत ज्यादा रिवाइज करने लग जाते हो, रिमेंबर यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. You are not forgetting the theory because you are underprepared with your theory section. Rather, you are not able to remember the theory because you have not solved enough problems using the theory concepts. तो याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज आई मेंशनड इज, आपको बहुत ज़्यादा बॉग डाउन नहीं होना है बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल. इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि लोग forget that they have to prepare with those resources. They keep searching for that perfect resource and preparation ही भूल जाते हैं. कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू सर्टन रिसोर्सेज. अगर आपने एक कोचिंग को ज्वाइन कर लिया तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनके कोचिंग मटेरियल, उनके क्लासेस को फॉलो करो. अगर आपने नहीं किया है तब भी आप अपने रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करो एंड डोंट थिंक कि अच्छा ये टॉपर ये फॉलो कर रहा है, वो टॉपर वो फॉलो कर रहा है तो मैं वो फॉलो करूंगा. सो ओके, तो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एज वेल. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज, याद रखना अगर आपके 6 मंथ्स है, डोंट टेक इट एज 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम है आपके पास. आपको अपना सिलेबस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में कंप्लीट करना है. एटलीस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस 3-4 मंथ्स में कवर करना है, बिकॉज कैट इज मोर अबाउट मॉक्स. जितना आप मॉक दोगे उतना जल्दी इंप्रूव होते जाओगे. जस्ट थ्योरी पढ़ के एंड एग्जाम में अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो मेक श्योर कि आप 3-4 मंथ्स का ही टाइम टेबल लेके चलो एंड उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेट्स. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एज वेल, 3-4 मंथ्स एज वेल, आपको मॉक शुरू कर देना है. डोंट वेट टिल यू कंप्लीट योर सिलेबस, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट शुरू करूंगा. ऐसा कोई टॉपर नहीं है जिसने मॉक्स नहीं दिया हो. ऐसा हो सकता है कि उसने प्रिपरेशन कम की हो, बट मॉक्स नहीं दिया हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. सो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी कैट सिलेबस कंप्लीट करो एंड उसके बाद अपना मॉक टेस्ट शुरू कर दो. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट. एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.